Hello children, welcome back to online class, and in this video we would read chapter number 5, that is A Wait in the Forest, published by Dhriti K. Lahari Chaudhary. And who was Dhriti K. Lahari Chaudhary? He was a professor of English and elephant expert, and he journeyed over thousands of miles in the forest of India and studying elephants, and he wrote in both English and Bengali and published different books on elephant. And children, so you have to learn the chapter's writer name and read the passages carefully, because the most of questions will be arise under the passage. So without wasting our time, let us start our video. In the Wait in the Forest, the whole story moved around of an injured young tusker, and there are three main characters in the story. The first is the chief wildlife warden of the state, and the second is the officer specializing in the tranquilizing animals, and third is writer himself there, and who traveled the wildlife wing of the forest department to save young tusker who had injured itself. चिल्ड्रन, ये जो स्टोरी है उसमें जो एक यंग टस्कर मीन्स एक छोटा एलिफेंट है जिसने खुद को हर्ट कर लिया है, और इसमें थ्री मेन कैरेक्टर्स हैं. पहला कैरेक्टर्स है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ स्टेट, एंड दूसरे जो ऑफिसर हैं जो स्पेशलिस्ट हैं एनिमल्स को बेहोश करने में, अनकॉन्शियस करने में, एंड थर्ड राइटर जो वहाँ पर प्रेजेंट है और जो कि वो सारी चीज़ों को नोटिस करता है. चिल्ड्रन, लेट स्टार्ट द पैराग्राफ नंबर 1. इन मार्च 1991 the East Mednipur Forest Division in the West Bengal sought the help of Wild Wing of the Forest Department. A young elephant accompanied by a herd of more than 50 elephants was injured and could not walk well. All attempts to drive away the herd were unsuccessful, as the herd, after being driven away, always came back to rescue their injured teammate who was lagging behind. The story starts in the month of March 1991. The place name is given here, the East Mednipur Forest Division in the West Bengal. जो ईस्ट मेदिनीपुर फॉरेस्ट का डिवीज़न था वेस्ट बंगाल में, सॉट द बुलाया वाइल्ड लाइफ को हेल्प करने के लिए. जो वाइल्ड लाइफ विंग ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो टीम थी उसको हेल्प करने के लिए बुलाया कि यंग एलिफेंट accompanied बाय द हर्ड मोर देन 50 एलिफेंट की देयर वाज एन यंग एलिफेंट एंड who had injured and he was moving one place to another accompanied by a herd, and in a herd there were more than 50 elephants. And what's the problem with that with the young tusker? He was injured and that's why he couldn't walk well. उसको क्या हो गया, उसको चोट लग गई जिसकी वजह से वो अच्छे से वॉक चल नहीं पा रहा. ऑल अटेम्प्ट टू ड्राइव अवे द हर्ड वर अनसक्सेसफुल. और जितने भी लोग वहाँ पे थे जो हेल्प करना चाहते थे किसकी, एन इंजर्ड एलिफेंट की, वो क्या कर रहे थे, जो हर्ड था, जो ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स को उसको भगाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से जो एलिफेंट है, जो इंजर्ड एलिफेंट है, उसकी मदद की जा सके. बट ऑल अटैम्प्ट्स गो इन द वैन. लेकिन जितने भी अटैम्प्ट्स थे वो सारे क्या हो गए देयर दैट्स नॉट अ फ्रूटफुल. उनका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ. एज द हर्ड आफ्टर बीइंग ड्राइवन अवे, क्योंकि जो ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स था भगाने के बाद ऑलवेज केम बैक, वो फिर से वापस आ जाते थे. एंड देयर किसके पास, उस इंजर्ड एलिफेंट के पास, जो कि वो उनके ग्रुप में कहीं ना कहीं वो ही वॉज फॉलोइंग बिहाइंड, जो कि पीछे उनकी ग्रुप में पीछे ही रह जाता था.
We arrived at the rest house of विष्णुपुर फॉरेस्ट एंड देयर वर 3 of us। कह रहा कि इस तरीके से हम लोग विष्णुपुर फॉरेस्ट में पहुँचे जो रेस्ट हाउस था, एंड देयर वर 3 of us। करे only I was not there, I have more than, we are more than one, like the first one is SCD, and who was SCD? He is the chief wildlife warden of the state, and the second is Subrata Chaudhary, the officer specializing the tranquilizing the animals। वो सुब्रता चौधरी थे जो कि स्पेशलिस्ट थे एनिमल्स को बेहोश करने में। एंड थर्ड आई अ हैंगर ऑन। व्हाट इज द मीन्स ऑफ हैंगर ऑन? अ पर्सन हु फॉलोज अदर्स इन अ ग्रुप विदाउट हैविंग एनी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्ले। कि मैं कि बिकॉज आई डोंट, बिकॉज द writer has not to play any role, that's why he was only present there and watching all activities। केवल जो राइटर थे वो वहाँ पर प्रेजेंट थे और वो सारी एक्टिविटीज़ को नोटिस कर थे। आई वॉज गेटिंग अनकम्फर्टेबली हॉट दैट इट वॉज द ओनली द मिडल ऑफ द मार्च। करे कि मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी फील हो रही थी, दो यद्यपि इट वॉज ओनली द मिडल ऑफ द मार्च। करे लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी फील, इतना अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, इतना ज़्यादा वहाँ पर हॉटनेस था। लेकिन वो क्या था, वो केवल महीना किसका था? मार्च का ही महीना था, मिडल ऑफ मार्च। केवल वो मार्च का जो आधा महीना था वही आधा बीता होता। देयर द हर्ड एंड द इंजर्ड एलिफेंट वर कंस्टेंटली मूविंग। जो हर्ड था, जो हर्ड मीन्स द ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, और जो इंजर्ड एलिफेंट थे वो कंटिन्यूसली वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर मूव कर रहे थे। हैंस द लोकल फॉरेस्ट स्टाफ कुड गिव अस नो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स करेंट लोकेशन। करे इसलिए जो लोकल फॉरेस्ट स्टाफ वहाँ का था, इसलिए वो हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि जो ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स था वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर ऑल टाइम मूव कर रहा था। We had just decided to inquire among the villagers when a young man belonging to the one of the local tribes approached us and said he knew where the injured elephant was। We had just decided to when we did not get exact information from the local forest staff, so we decided कि we talk among the villagers and get the information about the injured elephant। So when we were talking to the local villagers, that time one person who come out and told us कि he saw an injured elephant as the elephant was unable to move much। The young man was taking cut of the branches of trees to feed every day। क्या है, क्योंकि जो एलिफेंट था वो एक जो ट्राइब था, यंग मैन था, वो बाहर आया और उसने उस ग्रुप से बोला कि हाँ I noticed the movements of that herd, and because there was an injured elephant and he was unable to move one place to another, and because of that every day I cut the branches of trees and to feed it every day। We were enormously impressed। उसकी बातें सुनकर हम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। It was an area that was regularly ravaged by the wild elephant during the crop season। करे ये वही एरिया था जो कि जहाँ पर मोस्ट ऑफ टाइम कब, जब क्रॉप का सीज़न होता, जब फसल का सीज़न होता था तो उनके फसलों को एलिफेंट्स के द्वारा नुकसान पहुँचा दिया जाता था। The ones to suffer the most were the tribal people with their small plots of the land। क्योंकि जो वहाँ उन्हीं के नियरली प्लेस पर वो प्लेस था जहाँ पर वो एलिफेंट्स आते थे और उसको क्या करते थे, स्पॉइल कर देते। एंड येट हियर वॉज ए यंग मैन लुकिंग आफ्टर एन इंजर्ड एलिफेंट। करके इतना नुकसान होने के बाद एलिफेंट्स के द्वारा फिर भी वहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति था जो कि वो इंजर्ड एलिफेंट को क्योर करना, ठीक करना चाहता था, उसकी मदद करना चाहते। वी डिसाइडेड टू ट्रैक द बेस्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। सो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो ये ग्रुप ऑफ एनिमल्स
का है, द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, उसको हम नेक्स्ट मॉर्निंग से उसको ट्रैक करेंगे, उसकी लोकेशन को नोटिस करेंगे. आवर टीम वॉज नाउ ज्वाइंड बाय द वेटरनरी ऑफिसर हु हैड नो प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ ट्रीटिंग द इंजर्ड एलिफेंट. कह रहा है कि हमारी टीम में एक वेटरनरी ऑफिसर ने ज्वाइन किया जिससे कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं था कि किसी इंजर्ड एलिफेंट्स को कैसे क्योर करते, चाहे वो टैम हो या वाइल्ड हो. The villagers report said that the elephant had injury in one of the front legs. So the villagers जो होते हैं वो बताते हैं कि जो एलिफेंट्स का जो फ्रंट लेग है वो इंजर्ड हो गया है. टेकिंग इवन वन स्टेप वॉज एग्नी फॉर द एनिमल, कि उसके लिए वन स्टेप भी लेना उसके लिए बहुत ही दर्दनाक होता है. So children, watch this video carefully and the rest of paragraph we would discuss in a next video. Thank you. Have a nice day.